A very beautiful good evening, dear friends and aspirants preparing for TGT, PGT, and UGC NET. This is Dr. Muhammad Shamim, and already you know the title of my channel is JS English Literary Society, and I am happy, very glad to share with you that today I have 1000 subscriber, 1K subscriber. This is your cooperation coordination, that I got 1K subscriber, and you can you can just imagine how much happy I am today. And today I have brought for you a very nice video related to history of English literature, and in this video I have been covering the topic Augustan or classic age. So what I want to tell you ki I have started a series of history of English literature, because most of the students, they suggested me ki that I have to go with this series. This particular series means I have to cover the whole history of English literature. So in my previous video I have gone with Age of Sensibility, I have gone with Age of John Dryden, and you can just get these notes. It's available, not only notes are available, even my with audio. That particular means that particular thing is available there. So what I want to say ki when we talk about Augustan age or classic age, then remember that ki Augustan age or classic age, the leading poet of this age was Alexander Pope. So this age is also known as age of Alexander Pope, and the age covers the period from 1700 to 1745, even you can see here. So what I want to tell you ki the important point, the important thing is that ki I am taking, today I have taken what, today I have taken Augustan age. So the question is that कि जो एज मैंने लिया है Augustan age और classic age, why is it called Augustan age, या why is it called classic age? And remember that it covers the period from 1700 to 1745. So what I want to tell you कि this Augustan age, ultimately we know, या we should know कि Augustan age किसके नाम पे रखा गया, रोमन किंग ऑगस्टस के नाम पर. देयर वाज द रोमन किंग ऑगस्टस, और वो जो रोमन किंग ऑगस्टस थे उनके समय में रोम का जो लिटरेचर था बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, और 4 BC के आसपास के थे. तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि उन्हीं के समय में होमर एंड सो मेनी ग्रेट पोएट्स केम. तो वहाँ पे जो रोमन लिटरेचर डेवलप हुआ, जो रोमन लिटरेचर का जो वे ऑफ एक्सप्रेशन था, जो राइटिंग थी, जिस वे में होमर ने और उनके फॉलोअर्स ने लिखा, उस पार्टिकुलर चीज़ को, इट वाज कॉपीड बाय हुम, इट वाज इमिटेटेड और कॉपीड बाय हुम, इट वाज इमिटेटेड और कॉपीड बाय अलेक्जेंडर पोप एंड हिज फॉलोअर्स in English literature, which covers the period from 1700 to 1745. Again I would like to tell you कि in today's lecture I have taken Augustan age. Augustan age को हम classic age भी कहते हैं, और इस एज को जो है एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के भी नाम से जाना जाता है. इसको हम सूडो क्लासिसिज्म भी कहते हैं. तो मैं सबसे पहले एज की टाइटल पर आपसे बात करूंगा. इसका नाम ऑगस्टन एज क्यों पड़ा? किंग ऑगस्टस के नाम पे पड़ा. किंग ऑगस्टस कहाँ के राजा थे? किंग ऑगस्टस वाज अ रोमन किंग, रोम के राजा थे, और वो रोमन लिटरेचर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जिसमें होमर आते हैं और उनके फॉलोअर्स आते हैं. तो वहाँ पे, और उनका जो वे ऑफ राइटिंग था, जो वे ऑफ एक्सप्रेशन था, यू विल गेट दैट इन 17th century इंग्लिश लिटरेचर इट वॉज इमिटेटेड, इट वॉज फॉलोड बाई हुम, इट वॉज इमिटेटेड और फॉलोड बाई Alexander Pope and his followers. So what the way of writing they had taken, what the way of writing they had adopted, that was followed by Alexander Pope, but it was imitated with modification. We don't find that originality, we don't find that literary sense which was done by Homer एंड हिज फॉलोअर्स. इसीलिए इसको हम किसके नाम से जानते हैं? सूडो क्लासिसिज्म. सूडो का मतलब होता है दिखावा, झूठा. मतलब जो क्लासिक एज था, जो किंग ऑगस्टस के समय का जो लिटरेचर आया था, that beauty of literature, that beauty we don't find in the literature of Alexander Pope and his followers. But there is artificiality, there is what, there is only the imitation, there is the copying, there is modification. So that particular sense, that literary sense we don't find in the literary works of Alexander Pope and his followers.
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो पीरियड है कब से कब तक कवर करता है, 1700 से 1745 ईस्वी तक कवर करता है। तो जो 1700 से 1745 तक जो पीरियड कवर करता है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि 1700 ईस्वी में अलेक्जेंडर पोप की मौत हो जाती है। 1700 ईस्वी में जॉन ड्राइडन एक्सपायर कर जाते हैं और जॉन ड्राइडन के मरने के बाद जो लिटरेचर आता है उस पार्टिकुलर लिटरेचर को हम किसके नाम से जानते हैं, उसके बाद जो है अलेक्जेंडर पोप का आना होता है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ें रही हैं, जॉन ड्राइडन का मौत 1700 ईस्वी में होता है, तो 1700 ईस्वी के बाद जो लीडिंग पोएट आते हैं, जो एक बड़े पोएट हैं, वो अलेक्जेंडर पोप हैं। और यहीं से अलेक्जेंडर पोप पूरा का पूरा लिटरेचर उन्हीं के नाम से ही या उन्हीं के नाम से वो एज आता है। और यू कैन जस्ट सी हियर इन दिस स्क्रीन, हियर यू कैन सी या यू कैन जस्ट फाइंड सम पॉइंट्स कि अलेक्जेंडर पोप के एज को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक रिवॉल्यूशन हुआ था और वो रिवॉल्यूशन 1688 में हुआ था। तो इस नोट्स का जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1688। और वह जो रिवॉल्यूशन हुआ था उस रिवॉल्यूशन को हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। मैंने पहले के भी अपने लिटरेचर में बताया था कि जो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था उसमें जो है किंग जेम्स जो आपके थे उनको जो है क्या किया जाता है, ही वॉज डी थ्रोन, उनको गद्दी से उतार दिया जाता है विदाउट एनी मतलब बगैर किसी खून खराबे के। और उनकी जगह पर विलियम ऑफ ऑरेंज और साथ ही साथ अगर आप देखें क्वीन मेरी जो है क्या करती, राजा और रानी बनती हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये ज़रूर आएगा कि ऑगस्टन या क्लासिक एज का जो पीरियड है वो 1700 से 1745 ईस्वी तक है और हमें इसको समझने की कोशिश करना है। दूसरा चीज़ कि उसमें जो है उसके पहले जो हम एज जॉन ड्राइडन के बारे में बात कर रहे थे, तो जॉन ड्राइडन की मौत 1700 ईस्वी में हुई थी। लेकिन जॉन ड्राइडन के समय में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं, रक्त विहीन क्रांति हिंदी में कहा जाता है। और ये 1688 ईस्वी में घटित हुआ था। और उस रक्त विहीन क्रांति के में की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बगैर किसी खून खराबे के किंग जेम्स फर्स्ट जो थे उनको डी थ्रोन किया गया था। हाँ, किंग जेम्स सेकेंड को डी थ्रोन किया गया था। और इस तरह की चीज़ें हम पाते हैं। इसके अलावा यू कैन जस्ट सी हियर कि द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर जिसका नाम था द डेली कुरांट, इट अपीयर्ड इन लंदन इन 1702। तो अलेक्जेंडर पोप के एज की एक और ख़ासियत है कि डेली न्यूज़पेपर हमें देखने को मिलता है। और कब आता है, 1702 ईस्वी में। इसके अलावा इस एज की कुछ और भी खासियत है जो विच आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस इन माई ओन वर्ड्स की द एज वाज इट वाज द एज ऑफ द प्रोज एंड रीज़न। ये बात किसने कही, मैथ्यू अर्नाल्ड ने। मैथ्यू अर्नाल्ड ने 18वीं शताब्दी को 18th सेंचुरी को एज ऑफ पोप और एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की एज को उन्होंने क्या कहा था, इट वाज द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न। तो प्रोज का जो रिफ्लेक्शन है, इवन यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ प्रोज वेयर द इम्पैक्ट ऑफ प्रोज यू कैन सी विद मीन्स ऑन इंग्लिश पोइट्री यू कैन आल्सो सी द इम्पैक्ट ऑफ प्रोज। इंग्लिश पोइट्री पर भी प्रोज का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह जो एज था इट वाज एन एज ऑफ व्हाट, इट वाज एन एज ऑफ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एंड सो मैनी थिंग्स यू विल फाइंड हियर कि ये जो अलेक्जेंडर पोप का एज था वो मैगजीन्स का था, न्यूज़पेपर्स का एज था, जर्नल्स का एज था, कॉफ़ी हाउस का एज था, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास का एज था, ट्रेड एंड कॉमर्स का एज था। सो मैनी थिंग्स वी फाइंड। और इसके पहले जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का जो एक तरह से चल रहा था लड़ाई झगड़ा, वो चीज़ ऐसा नहीं था कि बहुत बढ़ा था, इसमें काफ़ी हद तक शांति आई थी। हम इस तरह की चीज़ों को भी देखते हैं। इसके अलावा इनके समय के एक बड़े राइटर, प्रोज राइटर रहे हैं जिनका नाम जोसेफ एडिसन रहा है। और ये चीज़ यहाँ बताना ज़रूरी है कि जोसेफ एडिसन को क्रिटिसाइज़ किया है अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पोयम एन इपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथ नॉट में। तो व्हाट आई वांट टू से कि इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑगस्टन एज को क्लासिक एज क्यों कहा जाता है, या ए ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है, एज ऑफ पोप क्यों कहा जाता है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू। यह एज कब से कब तक कवर करता है, 1700 से 1745 ईस्वी तक। वाई 1700 इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज 1700 में आपके जॉन ड्राइडन एक्सपायर कर गए थे और जॉन ड्राइडन के
एक्सपायर करने के बाद एज ऑफ पोप की शुरुआत होती है। इस एज की एक और ख़ासियत रही कि पहला जो न्यूज़पेपर रहा द डेली कुरेंट, वो जो है लंदन में पब्लिश होता है 1702 से। और यह जो एज रहा, यह एज काफ़ी हाउस के लिए इम्पोर्टेंट रहा, मैगजीन्स के लिए, जर्नल्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास के लिए। और साथ ही साथ इन्हीं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं कि प्रोज का इन्हीं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस एज को क्या कहता है, इट वाज एन एज ऑफ प्रोज एंड reason, and the impact of prose and reason even one can see where one can see means जो इंग्लिश पोइट्री है यू कैन जस्ट सी, वहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। और जो यहाँ से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि एक अलेक्जेंडर पोप के जो कंटेम्प्रेरी एक प्रोज राइटर हैं जिनका नाम जोसेफ एडिशन है, जिन्होंने कैंपेन नाम की एक पोएम लिखा था। यह पोएम 1704 में पब्लिश हुआ था। और इस पोएम में हम देखते एक पैट्रियोटिक सेंस देखते हैं, या पैट्रियोटिज्म वी कैन सी, यू कैन सी हियर आल्सो ऑन दिस स्क्रीन कि देयर इज़ अ the last point, the last arrow which covers that there is a poem campaign, and this poem is written by Joseph Edison which has the patriotic sense। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जोसेफ एडिशन को क्रिटिसाइज किसने किया? अलेक्जेंडर पोप ने जोसेफ एडिशन को क्रिटिसाइज किया है अपनी पोएम एन इपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथ नॉट में। सेकेंड पेज आप देख सकते हैं। सेकेंड पेज जो आपकी स्क्रीन पर या इस जो ये वीडियो बना हुआ इस पे नज़र आता है, इसमें बताया गया लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या एज की रही है। तो जब आप लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो वही चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि इट वाज एन एज ऑफ व्हाट, इट वाज एन एज ऑफ coffee house, it was an age of periodical essay, it was an age of emergence of the middle class, it was an age of what क्लब का एज था, एंड सो मेनी थिंग्स वी फाइंड। और ये जो एज था, इट वाज एन एज ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक मैनर ऑफ लाइफ, सटायर का एज, हीरोइक कपलेट का एज, स्ट्रिक्टनेस का एज था। और इसके अलावा जो है आप ये भी देखेंगे आयरनी का एज रहा है, कोटली मैनर यू कैन जस्ट सी, एंड दीज थिंग्स यू फाइंड वेट दीज थिंग्स यू फाइंड इन द वर्क्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप, स्पेशली कहाँ पर उनका जो मार्क एपिक है रेप ऑफ द लॉक। तो रेप ऑफ द लॉक पर अभी मैं बाद में बात करूँगा, बट हियर यू कैन जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ द एज, द ब्यूटी ऑफ द लिटरेचर ऑफ दैट एज, की उस एज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रही है, उस एज की जो लिटरेचर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रही है वह क्या था? कोटली मैनर था, एरिस्टोक्रेटिक लाइफ था, आयरनी था, सटायर था, हीरोइक कपलेट था, ह्यूमन नेचर था, सच अ थिंग यू फाइंड। बाकी यहाँ पे दिया गया कि उस एज को क्लासिक एज क्यों कहा गया, कि हर एज का एक लिटरेचर होता है, और वो लिटरेचर जो है क्या होता है, क्लासिक पीस होता है, और उसी वजह से उसको क्लासिकल एज या क्लासिक एज कहा गया था। और यह किसको रिफ़र करता है? ऑगस्टन एज को, जो किंग रोमन किंग ऑगस्टस थे। आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि देर इज़ सम अदर थिंग्स, यू डोंट हैव टू गो मीन्स कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, यू डोंट हैव टू फॉलो दीज पॉइंट्स, बट यू हैव टू रिमेंबर द पर्टिकुलर थिंग विच आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस लेक्चर, विच आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो। आपको उस एक्सप्लेनेशन पे जाना, व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द नोट्स, दैट नॉट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम टेलिंग यू द सिग्निफिकेंट पॉइंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू कैन जस्ट फाइंड आउट हियर। So what I want to tell you, you should try to understand why the age is called Augustan age, why the age is called age of Alexander Pope, why the age is called pseudo-classicism, why the age is called neo-classicism, why the age is called it was the age of the 18th century was the age of the prose and reason। ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस किया, कब से कब तक कवर करता, फ्रॉम 1700 to 1745, all these things। तो यू कैन आल्सो फाइंड हियर कि जो क्लासिक राइटर्स थे उन सबको अलेक्जेंडर पोप और उनकी टीम ने फॉलो किया, लेकिन जो उनकी वे ऑफ राइटिंग थी, जैसे होमर का, बॉयल्यू का, और साथ ही साथ रेपिन का, जो फ्रेंच राइटर्स वगैरह थे, उन सब का के कोटली मैनर्स को भी फॉलो किया गया। लेकिन वी डोंट फाइंड कि उस तरह की ब्यूटी जो है इस लिटरेचर में आती, बल्कि व्हाट वी फाइंड आर्टिफिशियलिटी, वी फाइंड ह्यूमन नेचर, वी फाइंड कॉपीइंग, वी फाइंड इमिटेशन, सच अ थिंग वी फाइंड। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि देर इज़ व्हाट यू कैन जस्ट सी हियर, अलेक्जेंडर पोप को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलेक्जेंडर पोप ही वाज बॉर्न इन 1688 एंड डाइड इन 1744। तो जो 1688 जो एक एज इम्पॉर्टेंट, जो एक डेट इम्पॉर्टेंट रही है ब्लडलेस रिवोल्यूशन के लिए, वो शायद वो जो है जो आपका ईयर रहा है, वह ईयर दैट इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द बर्थ ऑफ अलेक्जेंडर पोप।
तो पोप का ये चीज़ रहा है। एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर कि व्हाट हैपन इन द एज ऑफ पोप। आई एम नॉट टेलिंग यू कि व्हेन वाज ही बॉर्न, व्हेन डिड ही डाई एंड व्हाट अदर थिंग्स, बट आई एम टेकिंग सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस मैन। उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ था एज अ पोएट, अगर आप देखेंगे रेप ऑफ द लॉक उन्होंने लिखा हुआ है, एसे ऑन मैन उन्होंने लिखा है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म उनका पोएम है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि उन्होंने एज अ पोएट क्या लिखा, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, और साथ ही साथ रेप ऑफ द लॉक जो मॉक एपिक रहा है। और आप पाएंगे कि ही हैज़ रिटन ईच एंड एवरीथिंग इन हीरोइक कपलेट, और हीरोइक कपलेट वाज एन आइडियल मीटर, इट वाज द स्टैंडर्ड मीटर ऑफ हिज एज, and even in his writing he followed strictness, refined and polished poetry you will find. He didn't compromise to the quality of the poem, the particular norms which was established uh, in his age. He followed it strictly and also said others to follow. So these are the points which you have to remember. One thing I would like to tell you कि जब हम रेप ऑफ द लॉक की बात करते हैं तो रेप ऑफ द लॉक मॉक एपिक है, ये 5 कैंटोज में डिवाइड है। ये सबसे पहली बार 1712 ईस्वी में आता है, फिर 1714 ईस्वी में आता है। रेप ऑफ द लॉक एक तरह से कहा जाता है कि यह जो है पैरोडी है, एक तरह का कॉपी है या डुप्लीकेट है एपिक का, मतलब इसमें एपिकल मैनर को जो है फॉलो किया गया, लेकिन सब्जेक्ट मैटर क्या है, ट्रिवियल है। अगर कोई आपसे पूछता है ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर, माइनर सब्जेक्ट मैटर, पेटी सब्जेक्ट मैटर इसमें क्या है, तो यू विल फाइंड आउट कि कट डाउन ऑफ द लॉक ऑफ बिलिंडा, जो उसकी हीरोइन है बिलिंडा है, उसके बाल को जो पीटर काट देते हैं, तो दो परिवारों में क्या किस तरह की जो है तनी तना लड़ाई झगड़ा होता, उसको लेकर के जो है अलेक्जेंडर पोप ने क्या किया, इसको लिखा हुआ है हियर। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल मीन्स दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो दे सजेस्टेड मी दैट आई हैव टू बी बाईलिंगुअल। दिस इज वाई इन दिस लेक्चर हियर आई एम बाईलिंगुअल एंड जस्ट टेलिंग यू कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड अलेक्जेंडर पोप्स का रेप ऑफ द लॉक। इट्स नॉट अ स्कॉलरली वीडियो, बट इन दिस वीडियो you will come to know the questions which is asked in UGC NET, questions which is related to TGT PGT, खासकर जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उनको रेप ऑफ द लॉक से एक क्वेश्चन समझना ज़रूरी, चूँकि रेप ऑफ द लॉक मॉक एपिक है, और मॉक एपिक क्या है, टाइप्स ऑफ पोएम होता है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का वह हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने एसे ऑन मैन लिखा, एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट जिसमें उन्होंने जोसेफ एडिशन की आलोचना की है, उसको मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है। अलेक्जेंडर पोप की कुछ और पोएम्स रही हैं जिसमें अगर आप देखिएगा द डंसियार्ड उनकी पोएम रही। द डंसियार्ड में उन्होंने क्या किया हुआ कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स को क्रिटिसाइज़ किया हुआ, या एक सटायर है। और सम अदर पोएम्स यू विल आल्सो गेट की यू कैन जस्ट सी, और कि उनकी कुछ और भी पोएम्स रही हैं। उन पोएम्स में मैंने आपको बताया था कि एसे ऑन मैन रहा, एसे ऑन मैन ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है, और एसे ऑन क्रिटिसिज्म द आर्ट ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड है। और रेप ऑफ द लॉक मैंने बताया कि ये मॉक एपिक है, और यह कितने कैंटोज में रहा है, इट इज़ इन 5 canto, it has been divided into 5 cantos. Some other things you can just see here कि उन्होंने जो है अलेक्जेंडर पोप ने होमर की ओडिसी, इलियड और ओडिसी का भी ट्रांसलेशन किया। ओडिसी पूरा तो उन्होंने ट्रांसलेट नहीं कर पाए थे, बाद में उस ओडिसी का ट्रांसलेशन स्कॉलर्स एलिजा फेंटन एंड विलियम ब्रूम ने किया। आप इस चीज़ को देखेंगे। बाकी यू कैन जस्ट सी हियर आल्सो कि एसे ऑन मैन, द डंसियार्ड, उसके बारे में बात की गई है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अलेक्जेंडर पोप वाज अ वेल नोन राइटर, ही वाज अ वेल नोन पोएट। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को समराइज़ किया है, चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी एज के फीचर्स को उन्होंने रखा हुआ है, और हम कह सकते हैं उनकी एज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी यू कैन जस्ट सी in the poetry of that man. So what I want to tell you again, I would like to summarize the whole lecture in my own words. And what is that key in this video, in this lecture I have taken Augustan age. Augustan age को हम एज ऑफ पोप के भी नाम से जानते हैं, या क्लासिक एज के भी नाम से जानते हैं। ऑगस्टन एज को ऑगस्टन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह रोमन किंग ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है, और जो रोमन किंग ऑगस्टस थे उनके समय में जो रोम का लिटरेचर था बहुत ज़्यादा डेवलप किया, जिसमें एक बड़े राइटर का नाम लिया जाता है होमर, जिन्होंने इलियड और ओडिसी नाम का एपिक लिखा हुआ है, प्राइमरी एपिक। और अलेक्जेंडर पोप की जो 18th सेंचुरी के जो इंग्लिश जो पोएट्स रहे हैं, जो राइटर्स रहे हैं, जो अलेक्जेंडर पोप को फॉलो करते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है
किंग ऑगस्टस के समय की जो लिटरेरी सेंस था, जो वे ऑफ राइटिंग था, जो होमर लिखते थे, उस शैली को, उस डिक्शन को, उस वे ऑफ एक्सप्रेशन को उन्होंने अपने लिटरेचर में फॉलो किया। इसीलिए इनके एज को, मीन्स अलेक्जेंडर पोप के एज को हम क्या कहते हैं, नियो क्लासिकल, कि क्लासिक लिटरेचर, जो क्लासिक जो वे ऑफ राइटिंग था, उसको एक नए रूप में विद मॉडिफिकेशन, विद सम चेंजेस एंड इमिटेशन, they copied classic pieces of literature एंड द वे ऑफ राइटिंग, और उसको उन्होंने किया। इस वजह से इसको नियो क्लासिक एज कहा जाता है। इसको एक और सूडो क्लासिसिज्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूडो का मतलब होता है दिखावा, झूठा। तो जो क्लासिक की जो प्योरिटी थी, जो क्लासिक लिटरेचर की ओरिजिनलिटी थी, वो अलेक्जेंडर पोप और उनकी टीम या उनके फॉलोअर्स उस चीज़ को नहीं ला पाए। उसमें बहुत सारा आर्टिफिशियलिटी रहा, बनावटीपन रहा, इसीलिए इसको सूडो क्लासिसिज्म भी कहा जाता है। क्योंकि पोप इस एज के बड़े पोएट थे, इसलिए इस एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ कि यह एज कब से कब तक कवर करता है? 1700 से लेकर 1745 ईस्वी तक। 1700 ईस्वी में जो है जॉन ड्राइडेन की मौत हो जाती है, जो अलेक्जेंडर पोप से पहले आए थे, जो उनसे पहले एक बड़े पोएट थे, वो मर जाते हैं। तो उनके मरने के बाद एज ऑफ पोप की शुरुआत होती है, और अलेक्जेंडर पोप की मौत 1744 ईस्वी में होती है। उनका जो जन्म हुआ होता है 1688 में हुआ है। 1688 क्यों फेमस है? 1688 ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के लिए फेमस है, जिसमें जो है हमें देखते हैं कि किंग जेम्स को ब्लड, बगैर किसी रक्त खून खराबे के उनको गद्दी से उतार दिया जाता है, और विलियम और मेरी किंग और क्वीन बनती हैं वहाँ पे। और इसके अलावा अलेक्जेंडर पोप वाज आल्सो बॉर्न इन मिस इन दैट ईयर, उस सन में वो भी पैदा हुए थे। तो अलेक्जेंडर पोप को लेकर के व्हेन एवर वी टॉक टेकिंग दिस मैन, स्पेशली अलेक्जेंडर पोप, यू कैन जस्ट सी कि उनका जो एज है 18th सेंचुरी का एज था। मैथ्यू आर्नोल्ड इस एज को एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न का। इस एज की खासियत क्या थी? इस एज की खासियत थी ह्यूमन नेचर, हीरोइक कपलेट, कोर्टली मैनर, आयरनी, सटायर, एंड समथिंग यू विल फाइंड कि इस एज में, इसके अलावा एरिस्टोक्रेटिक जो वे ऑफ लाइफ था उसको लेके बात कही गई है। और ये सारी बातें अलेक्जेंडर पोप की राइटिंग में देखने को मिलता है, चाहे वो एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट रहा हो, जो उनकी पोएम का नाम है, एशियन मैन है, एशियन क्रिटिसिज्म है, रेप ऑफ द लॉक है जो मॉक एपिक का एग्जाम्पल है, और डंसियार्ड है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया हुआ है कि होमर की इलियड और ओडिसी का ट्रांसलेशन भी किया। इलियड उन्होंने पूरा ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ओडिसी का ट्रांसलेशन आधा अधूरा रह गया था, जो बाद में जो है कुछ दो स्कॉलर जिसका नाम एलिजा फेंटन और विलियम ब्रूम है, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, and you will also give me your feedback, because I have started a series of lecture related to history of English literature, जिसमें अभी तक मैंने किसको कवर किया हुआ है? एज ऑफ जॉन ड्राइडेन मैंने कवर किया, एज ऑफ सेंसिबिलिटी मैंने कवर किया, ओरिजिन ऑफ द नावल मैंने कवर किया, प्री रोमांटिक पोइट्री मैंने कवर किया, एंड रोमांटिक एज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उसको मैंने कवर किया। तो इन कमिंग डेज मैं जो है एक पूरा वीडियो जो है एज ऑफ जॉन मिल्टन पर बनाने वाला हूँ। तो आई नीड योर फीडबैक कि व्हाट द सजेशन, द ब्यूटीफुल सजेशन which can enrich this video, which can enrich this lecture. I need your suggestion, because you all are scholars, you all have the experience, and what other things you need which is highly significant from the perspective of TGT, PGT or UGC net. So you can just give your suggestion, and I will work according to your suggestion. कुछ लोगों का सजेशन आया था कि सर GIC जो GIC का जो लेक्चरशिप का जो एग्जामिनेशन होता है उससे रिलेटेड जो सिलेबस है उसके बारे में बात करिए, उसके बारे में बताइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो मैं बना के भेजूँ। एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि दैट विद योर due to your cooperation, coordination, today I got 1K subscribers. That shows the popularity of this channel. Again I need your cooperation, expecting your beautiful suggestion, और उसी के अनुसार मैं काम करूँगा। Thanks, hope you like this video.